بنیادی طور پر جو میں بات کروں گا کہ فیچر نگاری جو ہے یہ اس ہارڈ نیوز سے ہٹ کے ہوتی ہے جس کو آپ آئے دن کور کرتے ہیں۔ فیچر کو جب ہم ڈسکس کریں گے اس کے سٹرکچر سے، جو اس کا نیوز سٹرکچر ہوتا ہے، وہ بنیادی طور پر جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ داستان گوئی یا افسانہ نگاری جو آپ اردو میں اکثر پڑھے ہیں، آپ نے لکھے بھی ہوں گے، بالکل اسی سٹرکچر پر لکھی جاتی ہے۔ داستان گوئی کا تعلق جن لوگوں نے پڑھا ہوگا، ادب پارے میں بہت قدیم سے یہ روایت ہے، اور افسانہ نگاری جو کہ آج بھی ینگ لوگ لکھتے ہیں، موضوعات چنتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں۔ تو جو صحافتی فیچر ہے، شاید پرویز صاحب اور پروفیسر صاحب نے کریکٹ میں، اگر ہم اسے ادبی صحافت نہ کہیں، اسے ہم ادبی صحافت کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں، یعنی لٹریری جرنلزم۔ اس کی اب دو مجموعی طور پر اس کو ہم دو خانوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نیوز فیچر۔ فار ایگزامپل، یہاں پہ ایک بہت بڑا مندر ہے، شیوالا مندر، مطلب مسلم ڈومینیٹڈ ایریا ہے، اور ایک مندر ہے یہاں پہ شیوالا مندر۔ اچانک آپ لوگوں کو یہ رپورٹ کرنا پڑتا ہے، آپ لوگوں کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم اس مندر کے کل درشن کریں گے۔ تو یہ نیوز ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم خصوصی طور پر اس مندر کے درشن کریں گے، یہ نیوز ہے۔ اب اس کو جب آپ نیوز فیچر کے تناظر میں آپ اس کو کور کریں گے تو آپ نے اس مندر کی تاریخ بیان کرنی، اس کے ہسٹوریکل ایویڈنسز بیان کرنے، اس کا پس منظر آپ نے بیان کرنا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ ہم یہ فیچر نیوز کے ذمہ ہیں۔ اگر فار ایگزامپل آپ سادہ طریقے سے اس مندر کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے کہ یہ ایک بہت 14، 15، 1600 سال پرانا مندر ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ کالی شری کا مندر ہے، جس کے بہت پرانی سٹونز ہیں، وہ آریہ سماج کو ڈپلیکٹ کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیچر ہے، سمپل فیچر ہے۔ یعنی نیوز فیچر وہ ہے جس میں خبر بھی ہوتی ہے اور فیچر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو فیچر ہوتا ہے یہ خالص طور مطلب صاف طور پر صرف فیچر ہوتا ہے، اور امپورٹنٹلی یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں آپ موضوع سے باہر نہیں جا سکتے۔ فار ایگزامپل وومنس ڈے، اس پر آپ ایک فیچر لکھیں، پھر فیچر لکھتے لکھتے آپ کو اچانک کوئی ڈاٹا دستیاب ہوتا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں سب سے زیادہ وومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے پورے ہندوستان کے مقابلے میں، تو اس میں آپ کو ایک خبر بھی ملتی ہے۔ پھر آپ پہ یہ ڈپینڈ ہے کہ اس کو آپ صرف فیچر رہنے دیں گے یا اس کو آپ نیوز فیچر بنائیں گے۔ اس کی زبان کا جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا یہ کم و بیش جس طرح آپ بیٹ سٹوریز کور کرتے ہیں، اس کی زبان میں شائستگی ہونی چاہیے، لفظوں کا استعمال مطلب ایگریسو نہ، سبمسو، اس کا جو اپروچ ہوتا ہے وہ سبمسو ہوتا ہے، یعنی آپ کوئی چیز ٹھوسنا نہیں چاہتے بلکہ آپ ایک سرل انداز میں تنوع کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مطلب میں ایک ایکسپیرینس آپ کو شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے چلتے ایک رائے میری ہے آپ سب دوستوں سے۔ جب میں نے کشمیر عظمیٰ جوائن کیا تو سارے لوگ دوڑے کہ آج محبوبہ مفتی نے کیا کہا، نیوز ایجنسی کو دیکھیے، عمر عبداللہ کیا کہہ رہا ہے، گیلانی صاحب کیا کہہ رہا ہے، سب دوڑ رہے ہیں۔ تو
समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब रोज़ यही क्या, उसने क्या कहा, उसने ये कहा, उसने क्या कहा, उसने ऐसा कहा है, फिर उसने ये कहा, ही सेड एंड ही एडिड, ही सेड एंड ही एडिड। इसमें एक जो पर्सनल एक राइटर की एक कोई भी मतलब जो भी आप लिखते हैं असल में दुनिया में, वो हर बुनियादी तौर पर लिटरेचर का हिस्सा होता है। तो कहीं ना कहीं एक खलल होती है, कोई ना कोई एक एहसास होता है कि ये जो ये न्यूज़ मतलब हार्ड न्यूज़ है, ये जैसे भागा दौड़ी होती है। इसमें न्यूज़ तो चल जाती है लेकिन आप बतौर सहाफ़ी एस्टैब्लिश नहीं हो पाते। हमारे सामने एक जर्नलिस्ट है तारिक, न्यूज़ के साथ साथ उन्होंने ये किया पिछले 4-5 सालों से, ये कार्टून की फील्ड में आ। और आज तारिक साहब को बहुत कम लोग हैं जो बतौर न्यूज़ मैन जानते हैं। लेकिन जब भी आप किसी को कहेंगे कि तारिक अच्छा वो कार्टूनिस्ट है, एकदम बात आ जाती है। मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ, बहुत दौड़ लगी थी। हमारे एक बुजुर्ग टीम में थे खान साहब, उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, कहा कि तुम अपना वक्त ज़ाया कर, अच्छे खासे खाते पीते घराने के हो, जाके कोई बिजनेस करो, कोई लोन ले लो बैंक से। मतलब ये क्या है, मतलब बाईलाइन ऊपर आई नीचे कि मतलब आज उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मसला कश्मीर को हल किया जाए, फिर उसके रद्द-ए-अमल में मीरवाइज की एक बाइट ले ली, तारिक आमिर साहब की एक बाइट ले ली, छप गई आपकी स्टोरी, घर में आपने दिखा दिया, हाँ जी हमारा बेटा जो है साहब है। गांव में गए, मतलब अल्टीमेटली अपने मोहल्लेदार को ही दिखाना होता है कि भाई मेरा नाम है छप गया। लेकिन अल्टीमेटली कल जब अगर आपके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया जाए तो ये तो एक दुनिया कर रही है। ये लगा शायद कि या तो ये मुझसे बहुत जल्द है, लेकिन बाद में भी देर रात में घर पहुंचा तो मैंने कहा भाई घोड़ा तो सही करा, लगे तो हम उसी दौड़ में जिसमें हम सारे काम कर रहे हैं। जरा डिसाइड कि मैं एक ख़ास बीट पे काम करूँ। उसमें जावेद आज़र साहब और रियाज मसरूर साहब दो हैं, जिनने 2-3 राइटअप्स दे के ये फैसला किया कि हम मीरास उज़्मा के नाम से एक न्यूज़ फीचर लॉन्च करें जो जम्मू कश्मीर की कल्चर, हेरिटेज और तहजीब को कवर करें। और कहा कि यह हर सैटरडे को छपेगी और आपने इसको तैयार करना है। अब इसके लिए सबसे पहले ये है कि आप एक हिस्ट्री, तारीखी बैकग्राउंड से हो, तारीखी मजमून बैकग्राउंड से हो, तो मुझे वो किताबें लानी पड़ी, तारीख पढ़नी पड़ी कि मैं मतलब हिस्ट्री में भी किस बीट पे काम करूँ। एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, मुस्लिम हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। करते करते 7 साल तक, ये रिकॉर्ड है, 7 साल तक किसी अखबार में बिला कोई नागा आप न्यूज़ फीचर लिखिए। ये महीने के 4 साल के कितने हो गए और 7 साल के कितने हो गए। फिर एक दिन हुआ यूं कि एक बहुत बड़े सहाफ़ी है, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा यार तारिक, मैं गया था वहाँ पे अपने एक एरिया में जहाँ हम रहते थे, वहाँ डाउनटाउन में, तो वहाँ मैंने एक लंबी सी कब्र देखी, ज़रा देखना कि वो क्या इशू है। अब मुझे पता है कि वो खुद भी सहाफ़ी है और अगर वो स्टोरी करते तो मुझसे 1000 दर्जे बेहतर कर सकते थे। लेकिन उसके जहन में, उसकी नफ्सियात में एक बात आ गई है कि इस बीट के पर्टिकुलरली ये लड़का काम कर रहा है पिछले 8-10 साल से, तो इसी को रेफर किया जाए। इसलिए मेरी ये सजेशन है आपसे कि आप डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से फ़ोन उठाया, एडिटर साहब को फ़ोन किया, जनाब यहाँ पे फलानी मंत्री साहब फिसल गए, फिर पाँव में फ्रैक्चर हुआ, तो अब शुगर भी है, डॉक्टर ने कहा कि मतलब आप मीठा नहीं खा सकते, या यहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई जलसा हुआ तो दौड़ते हैं सारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को मौका नहीं मिलता कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर काम करने। होता यूँ है कि अखराजात बढ़ जाते हैं,
एंड फाइनली एक दिन आप इसको छोड़ के या तो प्रिंटिंग प्रेस खोल लेते हैं या DTP सेक्शन। हालांकि जैसे कि परवेज साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा कि सबसे जो ये लड़ाई लड़ते हैं ये डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पर काम करने वाले होते हैं। लेकिन ये क्या हाल है कि ये बहुत जल्दी दम भी तोड़ देते हैं और बिल्कुल एक गुमनाम सिपाही की तरह इनका कोई नाम निशान भी नहीं रहता है। अब खास कोई अपना कोई बड़ा अखबार निकाले जैसे कि कासिम सजाद साहब ने, तो वो कोई एक रेयर केस होता है। उसकी वजह यह है कि आप एक डेली रिपोर्टिंग के साथ साथ किसी एक पर्टिकुलरली बीट पे काम नहीं कर रहे। बीट सिर्फ पॉलिटिकल बीट नहीं है। रिसेंटली मैंने कश्मीर उज़्मा में इशफाक सईद की एक स्टोरी देखी। इशफाक सईद साहब हमारे सामने हैं, कुलीग रहे हैं मेरे, और मैं हैरान हुआ कि जम्मू कश्मीर में जो शीप की खपत है, यानी हम लोग इतने मांसाहारी हैं कि हम 3100 करोड़ का मीट एक सालाना खाते हैं। सिर्फ 3100 करोड़, 3000 करोड़ का हम सिर्फ मीट खाते हैं। और ये सारा मीट जो है राजस्थान, दिल्ली और अमृतसर की मंडियों से आता है। यानी हर रोज आपका 3000 करोड़ हर साल का यहाँ का जो पैसा है वो ड्रेन होता है बाहर। हालांकि जबकि हमारे पास नेचुरल पास्चर्स, यानी इसको अगर यूटिलाइज किया जाए विद इन द स्टेट में और छोटे छोटे यूनिट दिए जाए, आप बताएं कि कितने लोग आबाद हो। हम तो उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बहुत खूबसूरत फीचर है। तो इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट है, जैसे कि परवेज साहब ने बहुत से डिपार्टमेंटों का बेसिकली निशानदेही की है कि आप एक रूटीन न्यूज़ के साथ साथ एक एक बीट को पकड़ें। जिस बीट को कवर करने के बाद कम से कम 5 साल के बाद उस पर आप कम से कम 5 रिसर्च पेपर लिख पाए जो आपकी आइडेंटिटी होगी। यानी आपकी आइडेंटिटी ये होगी कि हाँ जी, ये तो अपने मंजूर साहब तो ये करते हैं न्यूज़ शूज़, लेकिन इनकी स्पेशलाइजेशन है कि ये फॉरेस्ट पे लिखते हैं, ये फॉरेस्ट को कवर करते हैं। हमारे कुछ ये वुमेन जर्नलिस्ट है यहाँ पे, ये कहेंगे हाँ जी ये तो कवर करते हैं हर एक चीज़ को, लेकिन साथ साथ में ये वुमेन इशू भी कवर करते हैं। बल्कि जब आप पर्टिकुलरली किसी बीट को कवर करते हैं, उसमें इतना रच बस जाते हैं, आप फिर जर्नलिज्म के साथ साथ एक्टिविज्म भी करते हो। इज इट राइट? बल्कि मैं ये कहता हूँ कि एक्टिविज्म का मन जब आपका बने ना, कम से कम आपने एक पर्टिकुलर बीट पर 3-4 साल गुजारे और वो आपकी आइडेंटिटी बनेगी अपने खत्ते में, अपने जिले में। वरना ये है कि रेला आता है, रेला जाता है, मामला खत्म हो जाता है। मतलब मैं अभी एक्टिव जर्नलिस्ट नहीं हूँ, फेलोशिप कर रहा हूँ और इसी हेरिटेज को लेकर अगर उनको मैं कंपाइल कर रहा हूँ 2-3 किताबें तो उसमें से निकल आएंगी बस, और क्या चाहिए। जैसे मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बल्कि आपको सजेस्ट करता हूँ कि एक एक बीट जो आपका मिजाज हो, जो भी मिजाज हो, ह्यूमन राइट्स है, वुमेन राइट्स है, चाइल्ड राइट्स है, इलिसिट ड्रग्स है। आपके साउथ कश्मीर में ड्रग इतना बड़ा माफिया है। ऑफिशियली मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑफिशियल रिकॉर्ड 2009 की है, जब मैंने इस पर एक स्टोरी की थी। 23,000 कनाल पे बंग होती है यहाँ, 23,000 कनाल। मुझे एक शिल्प मिली है कि बस चले थोड़ा बहुत चले अक्सर करें। तो खैर मैं ये कह रहा था कि फीचर को लिखने से पहले आप
अदब के उस स्ट्रक्चर को ज़रूर पढ़ें, अफसानों को पढ़े, दास्तान गोई को पढ़े। उससे दो चीज़ें आपको होंगी, एक तो वो स्ट्रक्चर आपको समझ आएगा कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और इसमें चूँकि इसीलिए यह है कि जो सॉफ्ट स्टोरी होती है फीचर, इसमें बाज़ औक़ात होंगे, देखते होंगे आप कि इस फीचरों के जो हेडिंग होती है वो बाज़ औक़ात मिसरे भी होते हैं किसी शेर में। मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ तो हमने बेलाग में उन पर एक फीचर किया था, उसमें हमने एक फ़ोटो लिया था उनका, उनके ऐसे हाथ थे, और ऊपर हमने गालिब का मीर का मिसरा लिया था कि उल्टी हो गई सब तकबीर, बस इतना। और उस फोटो और ये जो ये मिसरा है मीर का, इतने में सब बातें क्लियर हो जाती है कि कंक्लूड कहाँ हुआ है। तो मैं फीचर निगारी को सहाफ़ती अदब के ज़िम्मे में रखता हूँ। मुझे नहीं पता कि एकेडमिशियंस क्या कहते हैं और उनकी क्या तावील है, क्योंकि मैं दरअसल मैं सहाफ़त मैंने पढ़ी नहीं है, तो हादसोती तौर पर मैं जर्नलिस्ट हुआ। मतलब शायरी का शौक़ था, शायरी का वज़न हाथ में नहीं आया, तो मैंने कहा चलो रिपोर्टिंग ही चाहिए, तो करते करते लेकिन यह है कि उन चीज़ों को पढ़ें, वोकैबुलरी फीचर में जितनी बेहतर आप इस्तेमाल कर सकते हैं करें। और इसी के साथ शुक्रिया।